Hello student, today I will explain three important concepts of motion: uniform acceleration, variable acceleration, and acceleration due to gravity. These concepts help us to understand how the speed of an object change under different conditions. Getting my point? Before starting this session, I want to show you all slides which I discuss later. First, see the introduction, the topic which are uniform acceleration, variable acceleration, and acceleration due to gravity. And then second, learning objective. Mhm. After this presentation, you will be able to define uniform acceleration, define variable acceleration, explain acceleration due to gravity, and differentiate between different types of acceleration and numerical problem solve. And then third slide, acceleration, definition of acceleration, and what is the equation of it. And then uniform acceleration I will discuss. Uniform acceleration, take an example. Okay, and real life example of uniform acceleration, variable or we can say non-uniform acceleration I will discuss, and then example of non-uniform acceleration, then real life example of variable acceleration or non-uniform acceleration I will discuss, and then difference between uniform acceleration and variable acceleration, and then most important topic, acceleration due to gravity I will discuss with you, and then value of gravity and why does gravity cause acceleration I will discuss, and then example of acceleration due to gravity. After this sessions, after that slide, the lesson will be end. Okay, then now go to a first slide which is uniform acceleration and variable acceleration. It is a introductory, and then go to a learning objective. We have already discussed what I will teach you. Okay, then going to a next slide. What is acceleration? So acceleration means what? So acceleration is the rate of change of velocity with time. Before studying the types of acceleration, let us recall the definition of acceleration. Acceleration tells us how quickly velocity change with time. What I am saying you कि एक्सेलेरेशन बोलता है कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ. गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई आई टुक द डेफिनेशन ऑफ acceleration. First, I take a pen, select a pen, draw. I take a black pen. Okay. First, the definition of acceleration. Acceleration is the rate change, rate of change. Rate that rate क्या होता है? यहाँ पर जो rate दिया हुआ है, ये rate कुछ नहीं होता. ये rate मतलब होता है टाइम. ठीक है, फिजिक्स में रेट को टाइम बोला जाता है, बाकी डेली लाइफ में रेट को प्राइस बोला जाता है. ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे तो फिजिक्स का टर्म ही यूज़ करेंगे. तो हम लोग रेट मतलब क्या होता है? टाइम होता है. मतलब कितना चेंज हो रहा है आपका वेलोसिटी में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम का रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला आता है. तो पहले आपको याद रखना होगा ये जो आपका डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए एक इक्वेशंस आता है. आपका जो ए होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है. जो v आपका पहले यहाँ से आपको कुछ पॉइंट बता देते. देखिए, ए होता है आपका एक्सेलरेशन, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, t होता है टाइम. तो एक्सेलरेशन बोलता है कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और उसमें टाइम कितना लगा. ये चीज़ बताता है आपका क्या? एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आता है आपका, ये जो v माइनस यू बाई टी होता है, यही होता है एक्सेलरेशन मैथमेटिकली. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे पता चलेगा आपका? मान लीजिए कोई वेलोसिटी फाइनल दिया हुआ है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं पहले. जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए उसका 20 मीटर पर सेकेंड था. ठीक है, और कोई फाइनल वेलोसिटी उसका 30 मीटर पर सेकेंड हुआ, और टाइम दिया हुआ मान लीजिए इसको 2 सेकेंड लगा. ठीक है, तो कितना इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ? तो एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे v माइनस यू. v क्या है? 30, u क्या है? 20, और टाइम कितना लगा इसको चेंज करने में? 2 सेकेंड. तो आपका कितना आ गया? 10/2. तो इसको डिवाइड करने हैं तो कितना आ गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, ये आपका क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन को बता रहा है कि जो 5 मीटर है पर सेकेंड आपका, वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड का क्या है? स्क्वायर है. ठीक है,
तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, यही इसका बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी। इस पूरा फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग का डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट करते हैं बाइक को। जैसे हम लोग कहीं बाइक चलाते हैं तो हम लोग जैसे मतलब अगर रोड खाली रहता है तो हम लोग उसको किस तरह से एक्सेलेटर लेते हैं, तो वो जो एक्सेलरेट करते हैं तो वो हम लोग क्या होता है, वो स्पीड बढ़ता है। पहले कुछ कांस्टेंट स्पीड था या फिर वेरिएबल स्पीड था, फिर जैसे ही एक्सेलरेट लेते हैं तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है, जिसके कारण वहाँ पर टर्म यूज होता है एक्सेलरेट। क्या होता है, एक्सेलरेट। क्यों, क्योंकि चेंज होता है वहाँ पर भी किस में, वेलोसिटी में, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये जो बताता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये मैथमेटिकली इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहीं से प्रूव होता है। जैसे मान लीजिए ये टी जो है, मान लीजिए क्या टी जो है डिनोमिनेटर में, ये इधर जाएगा तो क्या होगा आपका ए हो, क्या होगा देखिए, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, तो इधर यू नेगेटिव में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, u प्लस ए टी। क्या होगा, u प्लस ए टी। ये जो इक्वेशन निकलता है आपका, क्या बता रहे हैं, किसका इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यही इक्वेशन यहीं से निकलता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम आगे बताएंगे ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, और एक तो आपका अल्टरनेटिव मेथड से भी प्रूव करके बताएंगे। यही जो मेथड है आपका अल्टरनेटिव मेथड है, बट हम ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे कि किस तरह से जो मोशन ऑफ इक्वेशन का पहला इक्वेशन जो आता है वो कैसे आता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड में मूव ऑन करते, तो आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्या था। हाँ, इसका एसआई यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट जो होता है ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड कैसे हो रहा है आपका, मान लीजिए यू और भी तो वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और नीचे में फिर टाइम, यूनिट टाइम, तो ये हो गया सेकंड। फिर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड, मीटर ये इंटू ऊपर आ जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यों स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और उसी से जब टाइम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, I will discuss with you a uniform acceleration. Getting my point now? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात बता रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि जो वेलोसिटी होगा वो आपका सेम चेंज होगा, मतलब सेम मतलब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो होगा पर यूनिट टाइम में मतलब इक्वल चेंज होगा। जैसे देखिए आपका डेफिनेशन बता रहे हैं, व्हेन, देखिए यहाँ पर लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। देखिए अंडरगो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या होगा, वेलोसिटी जो चेंज होगा वो इक्वल चेंज होगा। इट इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में अगर इक्वल चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए कोई पहला वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद आपका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए, कांस्टेंट माइंड हो गए। फिर मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड, फिर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। बस हम चार ही एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, चार ही को। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकेंड था, फिर यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकेंड हो गया, फिर यहाँ पर मान लीजिए 3 सेकेंड हो गया, फिर यहाँ पर मान लीजिए 4 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, फिर अगली बार कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आया, 10 मीटर वेलोसिटी। फिर देखिए अगले बार 15 हो गया। मतलब हर बार कितना कितना चेंज हो रहा है, ये 5, उसी तरह यहाँ भी कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है वेलोसिटी चेंज। मतलब क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम देखिए, टाइम भी इक्वल इंटरवल टाइम, 1 सेकेंड का डिफरेंस, यहाँ पर फिर 1 सेकेंड का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 1 सेकेंड का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 1 सेकेंड का डिफरेंस। ठीक है, तो हर बार क्या देख रहे हैं कि हम लोग कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं तो इसका जो होता है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हर बार कितना है आपका, यहाँ पर जो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हर बार कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट है यहाँ पर। वेलोसिटी चेंज इक्वली, वेलोसिटी चेंज इक्वली हो रहा है, देखिए 5 10 15 20, मतलब ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए ये यहाँ पर वेलोसिटी है ना वेलोसिटी। तो इसको अगर हम मिटा देते थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अगर मिटा देते हम लोग, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए, तो ये आपका वाई एक्सिस वेलोसिटी दे रहा है, ये आपका टाइम दे रहा है। तो जो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो बता रहा है आपका किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कैसे, कल ही हम बताए थे जब स्पीड का एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म, ये समान रूप से बढ़ेगा यहाँ पर, समान, ठीक है। ये समान होगा आपका, समान होगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, हर बार जो इसका मतलब ये हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब हर बार कितना कितना हो रहा है, जितना मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम लोग 5 मीटर पर सेकंड लिए थे, तो यहाँ भी कितना का चेंज होगा, 5 मीटर पर सेकंड का ही चेंज होगा, अगर ये आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। गेटिंग माई पॉइंट। कैसे पता चल रहा है कि इक्वल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो स्लोप होता है ये हमेशा कांस्टेंट ग्राफ देता है। कांस्टेंट ग्राफ मतलब कांस्टेंट मतलब ढाल देता है। देखिए किस तरह से हम बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बट अभी हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं जो इसका स्लोप देता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी को हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी दिखा दे रहे हैं, ये आपका टाइम है। तो ये जो आपका दिखा रहा है ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। क्यों यूनिफॉर्म, क्योंकि इस आपको पता है ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम का, वो आपका क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ स्लोप क्या देता है आपका, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो कांस्टेंट स्लोप देगा। कैसे, देखिए यहाँ पर भी एंगल है कुछ ना कुछ थीटा, यहाँ भी कुछ ना कुछ थीटा होगा आपका, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। तो हर बार क्या होगा, जो स्लोप होगा इसका कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हर बार इसका जो आपका ये देगा, स्लोप देगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या देखें हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। एंगल हमेशा क्या देगा, सेम देगा, जो स्लोप होगा वो सेम देगा, ठीक है, ग्राफ में, ठीक है। दोनों तरीके से मतलब डिस्कस कर लिए। पहला कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी चेंज इक्वली, हर बार इक्वली चेंज होगा, ग्राफ हमेशा इसका स्ट्रेट लाइन होगा। आपको याद रखना होगा ये चीज़, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक अगर थोड़ा सा और उसमें बता दे रहे हैं, पहला वाला स्लाइड में, कि इफ द वेलोसिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एवरी सेकेंड the acceleration remain constant. ओके, दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आप लोग को। अगर वेलोसिटी पर सेकंड वो इक्वल चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को जो हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल क्या, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। 0 सेकेंड 0 वेलोसिटी, 1 सेकेंड 5 वेलोसिटी, 2 सेकेंड 10 वेलोसिटी, 3 सेकेंड 15 वेलोसिटी। तो कितना अच्छा, हम पहले लिए थे ये वाला एग्जांपल, वही इसको हम लोग अच्छा से लिख के दिखाए हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड में ये चेंज हो रहा है। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है क्या है, कांस्टेंट है आपका, क्या है, कांस्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ट्रेन लिविंग स्टेशन स्मूथली। अगर मान लीजिए ट्रेन कोई चल रहा है, ठीक है, मतलब ट्रेन अगर आपका हर बार आपका इक्वल चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ट्रेन का, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। कार एक्सेलेटिंग स्टेडली, कार अगर एक्सेलेट कर रहा है एक मतलब एक समान से, तो उसको भी हम लोग क्या किसके अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी नियर, आपको पता है फ्री फॉलिंग अगर ऑब्जेक्ट कोई होता है तो उसका एक्सेलरेशन भी
क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो हर सेकेंड में कितना चेंज होता है वेलोसिटी में, 9.8 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया आप लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म पढ़े, तो अब नॉन यूनिफॉर्म को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या देखेंगे आपका, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या देखेंगे हम लोग किसका, व्हेन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, व्हेन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अभी वहाँ पर क्या था, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा था समय टाइम के साथ, वो आपका कांस्टेंट था, यानी कि इक्वल था। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल टाइम के साथ, वो आपका क्या होगा, वो वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग, एक्सेलरेशन इसका चेंज होते रहेगा, वेलोसिटी चेंज इरेगुलरली, ग्राफ जो मिलेगा इसका आपका क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट मोशन इन रियल लाइफ आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, व्हेन एक्सेलरेशन चेंज कंटिन्यूसली वी कॉल इट वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्यों, हम क्या बताना चाहते हैं, जो डेली लाइफ जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, वो हम लोग किस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली जो आपका वेलोसिटी चेंज होता है वो आपका एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट वेरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वी कॉल इट वेरिएबल एक्सेलरेशन, और वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है ये कर्व देता है। कर्व क्यों देता है, क्योंकि इसका मतलब ये इस केस में क्या होता है, आपका जो स्लोप होता है वो डिफरेंट आता है। यहाँ पर स्लोप जो होता है, स्लोप ये क्या देता है आपका, क्या देता है, मतलब मतलब क्या बोलेंगे, नॉट कांस्टेंट है ना, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से हम लोग एंगल निकालेंगे तो अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा, ठीक है, यहाँ पर अलग एंगल आएगा। तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो आपका अलग एंगल आएगा, मतलब हर बार इसका एंगल जो होगा, मतलब स्लोप जो होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब इक्वल चेंज। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया हुआ है, क्या एग्जांपल देखते हैं स्लाइड में जाके, हाँ एक एग्जांपल लिया गया है, तो इसी को हम लोग देखते हैं तो पता चल गया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जो वेलोसिटी चेंज होगा पर इक्वल मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो अलग अलग होगा, यानी कि एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। उसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 0 सेकेंड है तो यहाँ पर आपका 0 वेलोसिटी है, 1 सेकेंड में 4, 2 सेकेंड में 9, 3 सेकेंड में 15, 4 सेकेंड में 22। तो कितना इसमें कितना चेंज होगा, 5 का चेंज हो रहा है, इसमें कितना चेंज हो रहा है, +6 का चेंज हो रहा है, इसमें कितना चेंज हो रहा है, +7 का चेंज। देखा, हर केस में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है आपका, वो डिफरेंट हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, नॉट इक्वल थ्रू आउट द मोशंस, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज आर 4 5 6 7 नॉट इक्वल, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मूविंग टू ए नेक्स्ट स्लाइड, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसका तो एग्जांपल मतलब इन्वायरमेंट में भरा पड़ा है, जैसे कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, ये भी है। क्रिकेट बॉल आफ्टर बीइंग हीट करने के बाद क्रिकेट बॉल का जो मतलब मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे फास्ट होता है, पहले फास्ट होता है फिर वो धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। बाईसाइकिल ऑन अनइवन रोड, ये सब का क्या हो गया, डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो आपका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है। यूनिफॉर्म में बता दिए थे कैसे कांस्टेंट होता है, क्योंकि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या होता है, चेंजिंग एक्सेलरेशन, इसमें हर बार चेंज होता है। इक्वल वेलोसिटी चेंज, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये कर्व ग्राफ देगा। और ये प्रेडिक्टेबल मोशन होता है, ये इरेगुलर मोशन। प्रेडिक्टेबल मोशन मतलब क्या होता है कि वो हम उतना उसका फिक्स चेंज इन वेलोसिटी होगा पर यूनिट टाइम में। तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई जो डेस्टिनेशन है वो कितना टाइम में वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि उसका चेंज जो होगा वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में वो समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका ये होता है, ये क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वो आपका क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। क्या होता है, प्रेडिक्टेबल। इन डेली लाइफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज मच मोर कॉमन बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफन चेंज कंटिन्यूसली। बता चुके हैं ये आपका, यहाँ पर क्या होता है, आपका चेंज होता है, मतलब फोर्स जो लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अनइक्वल लगाते हैं, ठीक है।
तो अगर हम लोग मेन डिफरेंस बताएं तो द मेन डिफरेंस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट वाइल वेरिएबल एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग। ठीक है, हम लोग मेन डिफरेंस क्या देख लिए, इसका जो आपका ये रहता है मतलब वेलोस क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट रहता है, और उसका नॉन यूनिफॉर्म में वो चेंजिंग करता है उसका, ठीक है, वेलोसिटी। समझे आप? उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर फिजिक्स। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं पहले बता रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता क्या है, आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की ओर वो अट्रैक्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिसके कारण एक उस पर क्रिएट होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है? क्योंकि वहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो उसमें एक क्रिएट होता है आपका क्या क्या क्रिएट होता है? एक्सेलरेशन। और उसी एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। देखिए यही चीज़ बताया था, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो सिंबल होता है वो आपका जी होता है। क्या होता है? जी होता है। ठीक है, जैसे वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों समझे हम लोग? क्योंकि वो जो आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो आपका किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्री टूवर्ड्स और ग्रेविटी इंक्रीज इट्स वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज नॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बता चुके हैं आपको इसके पहले। उसके बाद क्या आपका वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, जी का वैल्यू जो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड होता है नियर द अर्थ सरफेस। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो जी का वैल्यू मतलब क्या है, जैसे हम लोग ए मतलब जी क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब क्या होता है, हर सेकंड में वो कितना का वेलोसिटी चेंज करता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड। मान लीजिए यहाँ भी यहाँ है 2 सेकंड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर बार वो कितना चेंज हो रहा है 9.8। ठीक है, हर बार इसमें प्लस हो जाएगा, फिर 9 फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो हर बार कितना होगा उसका आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट न्यूमेरिकली हम लोग इसको क्या मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी जो कितना चेंज होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गेन अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी सेकेंड ऑफ वेलोसिटी एवरी सेकेंड। ठीक है, वही चीज़ लिखे हैं, दिस मीन्स दैट अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गेन्स अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी एवरी सेकेंड। तो यही चीज़ है आपका किसका, आपका वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग देखे। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वाई डज ग्रेविटी कॉज एक्सेलरेशन, क्यों ग्रेविटी आपका कोज करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसको भी बता दे रहे, क्योंकि ग्रेविटी क्यों करता है तो आपको बता दे रहे, अर्थ ग्रेविटी इज ए नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये क्योंकि आपका ग्रेविटी जो होता है वो नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट एक्सलेट टुवर्ड्स द अर्थ अनलेस अनदर फोर्स अपोज देयर मोशन। मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही गिरता है जब तक कि उसके ऊपर कोई आपका अपोजिशन फोर्स ना लगे। ठीक है, तो वही जिसके जो आपका अट्रैक्शन होता है अर्थ का सेंटर की ओर, तो उसी के कारण ये कॉज होता है क्या, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखते हैं, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये देख लिए। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्ट किधर करता है, डाउनवर्ड करता है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेविटी इज द नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन because of this force all object accelerated toward the earth unless another force opposite मतलब अपोज देयर
मोशन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये सब क्या एग्जाम्पल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझा दिया आपका क्यों चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है, पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद क्या, अब ये आपका लेक्चर इंट हो गया, बट हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाना होगा, तो इसका भी आपका क्या होगा, आपका इसका ग्राफ क्या होगा, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड जो हो रहा है आपका, वो भी आपका इस तरह से, मतलब हर बार क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा इस तरह से ही चेंज होगा, मतलब हर बार समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रहेगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि हर सेकंड वो 9.8 मीटर पर सेकंड का ही क्या बनाएगा, वो वेलोसिटी चेंज करेगा। तो उसका भी अगर ग्राफ कभी पूछे कि आपका अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो आपका टाइम होगा उसका किस तरह से सोलव वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा, तो वो भी क्या देगा, आपका स्ट्रेट लाइन देगा, क्या देगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आ गया समझ में, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसका बारे में, ग्राफ हो गए। रुकिए, हाँ यहाँ पे जो था आपका स्ट्रेट लाइन, देखिए ये इसे ही ग्राफ उसका भी देगा, ठीक है, किसका, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। समझ में आ गया आप लोगों। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।